પરમ પૂજ્ય શીતલદાસજી મહારાજ વર્ષોથી પધાર્યા છે અને 2 મિનિટમાં કોઈ વખતે પૂરો કરો. भारत माता की विश्व हिंदू परिषद संत चिंतामणि सम्मेलन रुद्र जगत गुरु रामेश्वर बापजी आईनी भूमिना श्री विजयदास बापजी आज આપણે બધા પાવન ભૂમિ પર બેઠા છીએ. સંતોનું સંમેલન થઈ રહ્યું છે. અહીંયા જગતગુરુ બાપજીએ કીધું કે મને શબ્દ સારો લાગ્યો કે બધાના પુત્ર અને બધાએ રાજા બનાવવા માંગે છે, પણ બાજેનો પુત્ર સંત બને એવી બધાની પ્રેરણા હોય છે. પણ મિત્રો બધાએ અંદરથી, કારણ કે સંત કૃપા વિના સુકૃત ન સર, આ તો બધી સંતની કૃપા હોય બધાની, અને આપણી બધાની સંતોની કૃપા થાય ત્યારે આ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ખેડા આ ચિંતન ત્યારે ઊભું થાય. અને આ બધાનું આપણું બધાનું ચિંતન એનું વાઇબ્રેશન એટલું બધું મજબૂત બને કે જે આપણે જે કાર્યમાં પદ્ધતિ માટે જે કરવા માટે જે આપણે પ્રેરિત થયા છીએ, એ પ્રેરિત આપણી જે સભ્યતા, આપણી જે સંસ્કૃતિ રહી, એ સંસ્કૃતિ સહાય માટે એ વપરાય, એ માટે હું પ્રેરણા કરું. અને મારી વાણીમાં યહી કે વિધાન દેતા હું બોલી બીજું એક વિનંતી કરવાની છે મારે સંતોને કે આપણે ની આંગળી પકડી કોઈ દીકરો જતો હોય પાવાગઢ, આપણને બધાને અનુભવ છે. પાવાગઢ જઈએ છીએ, કુળદેવી આપણી છે, 1 કિલોમીટરના કંકુથી ચાંદલા કરીએ છીએ, પણ દીકરો જાણે આંગળી પકડીને આવ્યો હોય અને દીકરો પૂછે કે આ મંદિર ઉપર શિખર કેમ તૂટેલું છે, આ મંદિર ઉપર શિખર કેમ તૂટેલું છે, તો કોઈ બાપ ભાઈ આનો જવાબ નથી. સાહેબ, કોઈ બાપ ભાઈ આનો ઇતિહાસ નતો કે મોહમ્મદ બેગડાએ 500 વર્ષ પહેલા તોડ્યું છે. ખંભાતની અખાતથી તોપની નાળચાએ તોપ લઈ અને એને પેલું કોઈ ગુજરાતમાં તોપથી મારો કર્યો હોય તો પાવાગઢ ઉપર જ કેમ સાધુ નતા આપડા? કેમ કુંભ ભરાતો નતો? સાત વેદ, 1000 પુરાણ, 6 શાસ્ત્ર, ગૌ ગીતા, ગંગા, ગાયત્રી પરિવારની વાત કરનારો આપણો ભારત દેશ લવ જેહાદનો શિકાર આ પાકિસ્તાનમાં જઈને કરતા હોય, પાકિસ્તાન વાળા કરતા હોય તો ઠીક છે. 712 રાજા તાહિર હાર્યો, 18 યુદ્ધ કર્યા પછી, અને એક સુકડતા આપણે આયા છીએ. આપણા સિટી આવી ગયા છે, આપણા ઘરમાં આવી ગયા છે, સોસાયટીઓ ખાલી થવા માંડી છે. આજ આપણે સાધુઓ છીએ. હું સાધુના ચિંતન માટે કહું છું, દરેક જીવ પોતાના અસ્તિત્વ માટે લડે છે, પણ આપણું અસ્તિત્વ ટકાઈ રાખવું હોય તો હવે આપણે મેદાનમાં આવવું પડશે. બાકી આજ પેઢી આપણી નવી પૂછશે કે હવે તમારી માર્ગદર્શનની જરૂર નથી, હવે તો અમારી બેન દીકરી ઉપર આવી ગઈ, તમે બહુ બોલ્યા, બહુ મંચો ઉપર જ્ઞાનની વાતો કરી, હવે અમારે જ્ઞાનની વાત નથી સાંભળવી. આમ સમાજ કે એ પહેલા આપણે એક થઈને જાગૃત થવાની વાત છે. બાકી સમાજ તમને હવે ઘરમાં નહીં કરવા દે. આપણે આ સમય જે વિજયદાસના માથેથી જે નીકળી છે, વર્તમાન પરિસ્થિતિનું સાચું વિશ્લેષણ કહું છું. साधुओं, एक अनाप शनाप कोई चूहा बोल जाता है, लाखों की संख्या में निकल पड़ते हैं. वहां कोई जगत गुरु नहीं है, वहां 4 मठ नहीं है, वहां शंकराचार्य भी नहीं है. सिर्फ अनाप शनाप कौवे कौ करने वाले या कोई गिधड़ है, कोई रुद्र शरीर देख जाते हैं, हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं. और हम क्या करते हैं? चारों तरफ से धर्म से सुरक्षित, फिर भी आज हमारा मंदिर सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन दीकरियां सुरक्षित नहीं है, हमारी जमीन सुरक्षित नहीं है. कच्छ तमे विचारो, अरे अहमदाबाद विचारो, तमे खाड़ियानी सीट जे नाभी गणाती अपना गुजरातनी खाड़ियानी सीट अपनी पास जुहापुरा थी गोमतीपुर जाओ तमे, अरे बॉम्बे थी अहमदाबाद थी बॉम्बे हाईवे पर जाओ, साधु ने कोई जगह उभा रहवानी जग्या नहीं, कोई होटल में जવું खबर नहीं. એટલો મોટો લેવ જહાજ કે આજે બધું ચાલે, ફોટા આપડા હોય પણ અંદર બેઠા હોય. અરે મીડિયામાં તમે જો આ સમય આપણે એક નથી થવાનું કારણ કે અન્ન ખાવા માંડ્યા છે, આપણે ભ્રષ્ટ કરેલું અન્ન એમનું ખાવા માંડ્યા છે. કોઈ પણ હોટલ નથી, સાધુને બોમ્બે સુધી ઉભો રહેવાની કોઈ જગ્યા નથી. પરિસ્થિતિ એટલી બધી વરવે છે. અરે સાહેબ, તમે ડાકોર, તમે આજુબાજુ એના છોકરાઓનું વિવરણ જુઓ, તમે શું પરિસ્થિતિ છે. જે ભારત દેશમાં 33 કોટી દેવી દેવતાઓ જે ગાયમાં વસતા હોય અને સાધુ અસંખ્ય કરોડોની સંખ્યામાં આજે કુંભમાં સ્નાન કરતા હોય, ભારત દેશની ભૂમિ પર ગાય માતાનું ટીપું પડે અને હજારોની સંખ્યામાં કત્લેઆમ થાય, એ દેશનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય? આજે અનાપ શનાપ 2-3 દિવસ પહેલા જ બોમ્બે
किसी ने बोल दिया चलो बॉम्बे की ओर, कोई साधु बोला कि अंदर घुस के मारेंगे। अरे मारेंगे क्या, अस्तित्व नहीं रहेगा। वो साधु की ललकार है, चाहे कुछ भी हो जाए। अयोध्या भी आप बोल रहे थे, वहीं भी बोल रहे थे, कोई बोल रहा था जहां कहां। अरे हम वो बात है कि 12 किलोमीटर ऊपर भी उड़ान उड़ते हैं तो नीचे चूहे की ध्यान रखते हैं, चूहा पकड़ के बिल में से निकलता है तो पकड़ लेते हैं। वही साधु समाज है, वही ये भारत देश है। फिर भी एक ही आवाज निकाली, हजारों संख्या में। हमारे तो आंखें दंग रह गई कि विश्व हिंदू परिषद इतने सालों से मेहनत करता है, कोई बात पूछता नहीं है कि तू बजरंग दल में है कि विश्व हिंदू परिषद के। अरे साधुओं को भी मैं पूछता हूँ कि जहां भी रहते हो यहाँ 50-50 किलोमीटर अलग जगह हो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत है, आपको सरहद पे जाने की जरूरत है। आप जहां की रोटी खाते हो 50 किलोमीटर तक की रांग लगाओ और एक सबको न जाति न वर्ण सभी हिंदू सवर्ण एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करो, न वरना रोटी भी छिन जाएगी हाथ में से अगर नहीं किया। वनवासी क्षेत्रों में जाते हैं, आंखों में आंसू आते हैं वही प्रजा को देख के, तो समझाना पड़ता है। गौरव की गाथा की बात हमारी है। कोई ऐसा दो ताश रखते हैं, एक में हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं राम जी महाराज जी, एक में काष्ठ की मूर्ति रखते हैं अपने भगवान की। तो हनुमान जी की मूर्ति तो पानी में डूबी जाती है और फिर बोलते हैं कि देखो तुम्हारे भगवान डूब गए तो आपका कल्याण क्या करेंगे, वो खुद नहीं कर सकते तो आपको कैसे तारेंगे। और काष्ठ की मूर्ति उसकी यीशु की रखते हैं तो तैरती है। तब जाके हम कहना पड़ता है कि राम जी उसका विश्लेषण देखो, हजारों की संख्या में कहना पड़ता है कि आप ऐसा सोच के आपके दिमाग में मत करो और मत लाओ ऐसे विचार, धर्म परिवर्तन की बात मत लाओ। ये भगवान की बात कर रहे हैं कि आपके भगवान डूब जाते हैं, हमारे भगवान तैरते हैं, हमारे भगवान तैरते हैं तो आपको तारेंगे। अरे सुनो, मैं अपना जितना बीरबल हमारा इतिहास रहा है, शौर्य व सारी इतिहास रहा है, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आपको समझाने की बात या ये प्रसंग आपको इसलिए कहता हूँ कि जहां भी ऐसी बातें आवे तो ये प्रसंग आप कह सको। तो हम कहते हैं कि हम हमारे राम की बात नहीं करते हैं, जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र था वो कृष्ण की बात नहीं करते हैं, जिसके हाथ में पिनाक धनुष है और जिसके हाथ में त्रिशूल है ब्रह्मांड के हमारे महादेव की बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ दापर में एक युद्ध हुआ था जिसको हम भीष्म पितामह कहते हैं, जिसको भीष्म पितामह कहते हैं। और युद्ध में अर्जुन से और नख से शिखा तक बाणों से छलनी कर देता है, फिर भी हमारा वो भीष्म पितामह 50 या 49 दिन युद्ध भूमि में प्राणों की छैया में, बाणों की छैया में, फिर भी जिसके पास मौत नहीं आ सकती है उस वंशजों के हम बीरबल संतान हैं। तुम्हारे यीशु ने 4 खिले ठोक दिए हाथ में, एक छाती में, 2 पांव में, 2 हाथों में, और 2 घंटे के बाद उतारा तो उसमें प्राण नहीं था। और हमारा भीष्म पितामह वो भगवान नहीं है, सिर्फ योद्धा है, योद्धा, फिर भी 50 दिन उसके पास मौत नहीं निगराती। महाराज जी भगवान कहते हैं कि अब आपको जाना है, तब कहते हैं कि बस अब प्रयाण करूं। वो हमारे युवान, हमारे बीरबल, इसलिए तो भीष्म पिता कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं सभी को, अगर हमारे बीरबल योद्धा ऐसे होते हैं तो विचार कर लो, सोच लो, हमारे चक्रवर्ती सम्राट अखिल ब्रह्मांड का अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे होंगे। इसलिए हम कहते हैं मजबूत, जिसकी रक्षा 4 मठ करते हो, जिसका 51 फीट शक्तिपीठ का हो, वही प्रजा हर दिन चिंता करे, हर दिन चिंता करे। लव जिहाद हमारी बहन बेटियों, जहां भी आज नवरात्रि आई है चारों तरफ टेंशन में रहते हम, क्या होगा क्या होगा। महाराज टेंशन में हम इसलिए रहते हैं, 4 दिन पहले बॉम्बे में उसने पूरा रोड जाम कर दिया, पूरा भारत देश बौखला गया है, पूरा भारत देश एक ही जिक्र की उसने और आंखों में ये सब डाल दिए कि देखो देखो क्या होगा, सबका मॉरल तोड़ने की बात। हमें इसमें से सीखने लिए है कि हम कभी भी अगर सेलिब्रिटी आती है तो बहुत हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अगर कोई साधु कुछ कहने के लिए जाता है और बताने के लिए बात जाता है, आज 60 सालों से विश्व हिंदू परिषद को साइड में रखो, कौन साधुओं का अस्तित्व है, कौन इकट्ठा करेंगे, कौन नारा लगाएंगे गौरव से गौरव हिंदू है। अरे आपके दहलीज पे चोखे भगवान श्री राम का आमंत्रण का कौन पहुंचाता है, कौन निकला है साधु।
घर घर अगर इस लाखों घरों में चोखे अस्तक जो था भगवान श्री राम का आमंत्रण का इतना पूरा मैनेजमेंट, फिर भी आज विश्व हिंदू परिषद हमारी मातृ संस्था है, अगर उसको साइड में आप निकालो। बजरंग दल साधु ने नारा लगाया था, संकल्प किसने पूरा किया? साधु ने बाहर निकल के कहा था कि कसम रामलला की खाते हैं, रामलला हम आएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे, ये नारा लगाया, सौगंध हमने खाई, लेकिन जान की आहुति विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लगाई। जान की बाजी, जिसके घर पे बच्चे थे, हमारे घर पे बच्चे नहीं है, हम तो पिंड दान करके निकले। अगर शहीद होना हो तो साधु को होना चाहिए। जब इस देश में साधु शहीद के कंगाल पे खड़ा रहेगा, मेरे ऐसा संकल्प है या सोचना है कि भारत देश में पूरे विश्व में किसी की ताकतें होगी कि सनातन की तरफ पूरी आंख ऊंची करके देखे, लेकिन साधु संकल्प कर ले कि हमें हमारे दायरे में काम करना है, वरना तो परिस्थिति वर्वी है ही है। जैसे विजयदास जी ने कहा, आप मातर ले लीजिए, आप अहमदाबाद छोड़ के बावड़ा ले लीजिए, धौलका ले लीजिए, मोडासा ले लीजिए, और के नागौर के आजू-बाजू जो भी है विश्व हिंदू परिषद की रात दिन जो काम करते हैं वहां ले लीजिए। अगर पाकिस्तान में होता, अफगानिस्तान में होता तो बात सही है। इस भारत देश में जहां 99% सब सिंगल डीएनए, सब हिंदू रहते हैं और कहते हैं, सब इकट्ठे होते हैं कि गौरव से कहो हम हिंदू हैं। अरे हिंदू रहने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, वरना तो गीत गिदर कुछ भी हो, एक शेर जंगल में होता है और भेड़ बकरियां शादी हो जाती तो शेर को भी नोच खाती है। शेर की व्याख्या में मत रहना, शेर की व्याख्या तब होती है कि खुद शेर रहे और अपने बच्चे को सवा शेर बनाए, तब तक नहीं होगा, वरना तो उसकी भी उम्र होती है, उसको भी अपना सिंहासन छोड़ना पड़ता है। हम अभी भाग्यशाली है, जो प्रजाति, ये मैं बात कर लो, वीर सावरकर जी ने भी कहा था, जो प्रजाति अपने भूखंड में अपने पूर्वजों का इतिहास सही तरह से नहीं जानती है और वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण सही तरीके नहीं जानती, वो अपने आने वाली पीढ़ी के हाथ में सुरक्षा कभी प्रदान नहीं कर सकती। किसके पास है? फिर भी आज इतनी संख्या में है, ऐसा वक्त ना है कि साधु पे, यही भारत देश की सनातन धर्म की भूमि के संतान साधुओं पे अंगली उठाए कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। विश्व हिंदू परिषद का साधुओं को ऋणी रहना चाहिए। हमारे जितने जितने संकल्प किए उसने समाजों में जाकर पूर्ण किया है, जितने जितने संकल्प किए। राम का नारा लगाया था साधु ने, संकल्प उसने पूरा किया। दवा जल गया था, उसमें कौन निकला? विजयदास जी। दवा पूरा जला दिया था, कौन निकला उसमें? कभी जाके पूछा है कि घर में कौन जिंदा है और कौन चला गया डब्बे में? वो तो विश्व हिंदू परिषद है कि महाराज की जाके ला के बुलाती है और आपके हाथों से, आप सोचो, ऐसा काम करके अपने हाथों से स्वागत करवाता है। ये अपनी शान बान आन रखने के लिए अपने हाथों से कि महाराज जी के हाथों से स्वागत कर रहा हूं। यह विश्व हिंदू परिषद अपनी मातृ संस्था है और सभी साधुओं को मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं। अगर भारत देश को बताना है वर्तमान परिस्थिति का ये सही विश्लेषण है, वरना वो वक्त दूर नहीं है। आज जो देख रहे हैं गिद्धड़ों की तरह निकल जाते हैं और इतनी संख्या में निकल जाते हैं कि रास्ता हमें नहीं मिलेगा अपने देश में, क्योंकि प्रतिष्ठित मंदिरों बनाने के लिए जो इतना साल लगता हो तर्क की बात है। ये भारत देश का पूरा राम का मंदिर, इतने थोड़ा सोच लो सब साधु, ये राम जी का मंदिर बनाने में इतना वर्क लगता है और महाकाली पावागढ़ में 500 साल उसकी ध्वजा चढ़ाने में जो प्रजाति यहाँ रहती है उसको इतना लगता है। अगर कोई घटना घटी तो फिर उसका विश्लेषण है आपके पास कि क्या होगा? अभी भी हमारे बाहों में दम है, अभी भी सब होकार वाले हैं। सिर्फ न जाति न वर्ण सभी हिंदू सवर्ण। अगर आपको रहना है, साधु बन के रहना है, अगर हम राम के चिन्ह को जीवित रखना है और भारत देश की सनातन भूमि को जीवित रखना है तो अपने पीढ़ी को मजबूत करना है। ज्ञान तो सबको है, मां सबरी को भी था, सिर्फ गुरु ने कह दिया था राम आएंगे, उसने ना वेद पढ़ा था ना कुछ नहीं, सबको मालूम है। अब साधुओं को मेरी करबरत प्रार्थना है कि ज्ञान की बातें आप चैनल खोलो तो साधु ही साधु चलते हैं। इस भारत देश में सबको यही कहते हैं कि ये करो, फिर भी भारत देश समस्याओं से बाज नहीं आता है, समस्या हल नहीं होती है। ये साधुओं का चिंतन शिविर, इसलिए तो चिंतन शिविर है। विश्व हिंदू परिषद तो समाज में काम कर रही है, समाज को इकट्ठा करने के लिए अपने परिवार को छोड़ के, लेकिन इतना सारा ज्ञान इस भारत देश में होता है, फिर भी इस भारत देश में अपनी बेटियां उठ जाती है।
जहाँ अभी अहमदाबाद में 3 तार मंदिर का मुझे फोटो आया विजयदा की, भगवानों पे धूल चढ़ी है, साधु निकल गए, मुसलमान बहुलौकिक संत हो गए वहां। अब सोचो क्या होगा अगर मंदिर को, मठ को, भगवान को कह दो कि आप ये तुलसी ग्राम, ये शालिग्राम को अभिषेक करो, भगवान को तिलक करो और बोल दो कि आप पूजा तो हम समाज में जाके आपकी करेंगे, तब जाके भगवान सुरक्षित रहेंगे। अब मंदिरों में बैठने का समय नहीं है, अब बाहर निकलने का समय है, समाज को एकत्रित करने का समय है। वरना महाराज जी ने ये जो शब्द निकाले हैं मेरे दिल में घुस गए, क्योंकि मैं परिस्थिति देखता हूं चारों तरफ कि क्या है, आपके पास है क्या? गुजरात की बात करता हूं, क्या है? फिर भी वो अभी इतने सारे हम हैं, इतने साधु, अभी जो वहां कुंभ लगेगा, ड्रोन भी छोटे पड़ते हैं, ड्रोन भी। विश्व का एक विश्लेषण आया था कि जिस देश में समाज कम और साधु सन्यासी ज्यादा, वो तो देश पूरे विश्व में नियंत्रित करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने हमारी हिस्ट्री सब पढ़ी, बोले कि कोई सब ये लगते हैं सब इतनी संख्या में, ये बात सही है, लेकिन एकत्रित नहीं है। लगते हैं ड्रोन भी छोटे पड़ते हैं, वहां जिस समाज के साधु संत करोड़ों संख्या में वहां स्नान करते हैं हजारों साल से वहां, लेकिन फिर एक विश्लेषण आया कि सबके जेब में अपना अपना कार्ड है परिचय का। क्या आज से हजारों साल पहले, सालों साल पहले हुमायूं ने ये युद्ध की थी, इस नारे पे नदी के थे, रात को चलो के वापस चलना है, तो फिर तो रात को देखा कि भाई यहाँ तो अलग अलग आगे लग रही है, तो किसी ने पूछा कि अलग अलग आगे क्यों लग रही है, तो बोले कि रसोई हो रही